Good morning, students. How are you? Very fine. So, we discussed about self inductance and then about mutual inductance. Self inductance is the property of the coil itself, and when we talk about mutual inductance, it means we are considering between the two coils. So, now here we want to derive the expression for mutual inductance of two long coaxial solenoids of equal length. Coaxial means of the same axis. Here we are taking it like this, that let us say we are considering this is one solenoid S1. And now we consider that solenoid S2 is closely bound to each other. It can be like this. If you are taking the terms to be like this, so now this is S2. So these are the two solenoids, and now we are considering that length of each solenoid is L and axis of both the solenoids is the same axis है. ठीक होगी बात? So here now we are considering that let us say N1 is the total number of turns of solenoid S1 and N2 is the total number of turns of solenoid S2 and A is area of cross section of each turn of solenoid. ठीक हो गया. अब इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट की बात देखिए सबसे पहले कि अगर मान लीजिए कि आई करंट जो है ये फ्लो कर रहा है थ्रू दिस सोलिनॉइड S1, तो बेटा इस तरीके से जाएगा, यहाँ से बाहर आया. तो जब आई करंट इस सोलिनॉइड S1 में से पास होगा तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड इज सेट अप इनसाइड सोलिनॉइड. So that means now we will see magnetic field set up in solenoid S1. Now mind one thing, that the magnetic field setup is uniform magnetic field. Value of magnetic field inside solenoid S1 is same at every point. And what will be its value? Mu naught into number of turns. Now N1 is the total number of turns and L is the total length. So number of turns per unit length will be N1 by L into I, the current flowing. तो ये आपके पास आ गया कि due to flow of current I, magnetic field is developed inside solenoid S1. Now what is the meaning of magnetic field? That means magnetic lines of force per unit area. So lines of force are passing through the solenoid. और अब अगर आप ध्यान से देखिए तो solenoid S2 जो है that is completely bound over S1. तो इसका मीनिंग ये हो गया कि जो भी magnetic lines of force solenoid S1 में है, all of those lines of force will also pass through each turn of solenoid S2. क्या कह रही हूं मैं कि all those magnetic lines of force will pass through each turn of solenoid S2. Now we see magnetic flux linked with each turn of solenoid S2. तो इट इज डी फाई बी. बी मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स. डी मतलब मैंने क्यों लिया? स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स, बिकॉज आई एम टेकिंग ओनली कि ये जो एक टर्न है, दिस वन टर्न, इसके अंदर कितनी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है. तो ऑब्वियसली दैट विल बी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाय द एरिया. तो ये आपके पास बन गया म्यू नॉट
N1 by L I into E. सुनो, उसके बाद अब आप क्या देखोगे, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स linked with solenoid S2. तो नेचुरली बेटा अगर एक टर्न में इतनी फ्लक्स आ गई एंड यू नो दैट द टोटल नंबर ऑफ द टर्म्स ऑफ S2 इज N2, तो आप उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि जो फील्ड है बेटा दैट इज यूनिफॉर्म. इसका मतलब कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट पर टर्न आ रही हैं वो क्या होंगी, सेम होंगी. So now it means phi will become mu naught N1 by LIA. This is the flux linked with one turn multiplied by the total number of turns. ठीक हो गया? So now we know that what is this? This is the mutual inductance. A mutual inductance of 2 with respect to 1. क्योंकि जो करंट पास हुआ वो 1 में हुआ, फील्ड किस में प्रोड्यूस हुआ, 1 में, उसकी वजह से किस में फ्लक्स आई, 2 में. तो M21 इज द म्यूचुअल इंडक्शन सेट अप इनटू आई. ये किसके बराबर है, म्यू नॉट N1 N2 A बाई L इंटू आई. आई से आई कैंसल हो गया, तो दैट मीन यू आर गेटिंग M21 इज M1 म्यू नॉट N1 N2 A by L. और इसमें अब अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की बात करोगे तो ये N1 N2 इंटू L आ जाएगा. ठीक है. अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है. ये तो हो गया. अब सेकंड पॉइंट इसमें क्या अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है. ये देखो चीज़ें तो वही हैं, टर्म्स हर एक चीज़. नो द क्वेश्चन इज कि लेट अस से कि करंट जो है वो करंट S1 में से नहीं पास हो रहा, बल्कि जो करंट है वो S2 में से पास हो रहा है. S2 में से पास हो रहा है करंट इसकी टर्म से. तो क्या होगा, सेम स्ट्रेंथ ऑफ करंट I इज पासिंग, बट नाउ इट इज अलाउड टू पास थ्रू S2. तो दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड विल बी डेवलप्ड इन द कॉइल S2. तो बच्चे, तो दैट मीन्स कि वो ये देखो कि ये जो फील्ड लाइन जब है तो सारी की सारी S1 के अंदर तो आएंगी ही आएंगी. सो देयर विल बी नथिंग. अब फर्क क्या आएगा, अब आपके पास जो फील्ड आएगा B डैश वो कितना बनेगा बेटा, म्यू नॉट N2 by L into I. क्योंकि इसमें अब नंबर ऑफ टर्म्स किसकी लेनी है, नंबर ऑफ टर्म्स पर यूनिट लेंथ ऑफ S2. N2 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, L लेंथ है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ विल बिकम दिस. तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स अब किसके साथ लिंक्ड होगी, विद ईच टर्न ऑफ सोलिनॉइड S1. तो वो क्या आएगी, म्यू नॉट N2 by Li into A. तो टोटल फ्लक्स linked with S1 will be flux linked with each turn multiplied by the total number of the turns, that is N1. तो बेटा ये आपके पास क्या बन गया, म्यू नॉट N1 N2 A by L into I. And what is this now? This is mutual induction. किसमें आज सेटअप हुई, 1 में, ड्यू टू सेकेंड, बिकॉज करंट इज फ्लोइंग इन द सेकेंड, into I से I कैंसल हो गया. So what are you getting? You are getting M12 is mu naught N1 N2 A by L. Again you are getting the same value as in this. So इसका मतलब क्या हो गया कि M21 is equal to M12 and we call it as M. तो M is the mutual inductance between two coils. तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि whether the current is flowing through primary and you are getting induced EMF in secondary, or the current is flowing through secondary and you are getting induced EMF across primary. Nothing. It is a mutual induction. Clear? और अब अगर आप बेटा इसको कंपेयर करो तो आप ध्यान से देखिए कि अब जैसे देखो, एक तो पहला बात हो जाती है अंडरस्टैंड करना. अब इसमें एक तो आपने ये चीज़ अंडरस्टैंड कर ली कि इसमें मेरे को कोई क्रैम नहीं करना,
कि भाई जी करंट फर्स्ट कॉइल में से पास हो रहा है या सेकंड में से हो रहा है। अब इसमें आपके पास m जो बन गया वो बन गया म्यू नॉट N1 N2 A बाई एल, या अब आप इसको क्या लिख सकते हो बेटा, म्यू नॉट N1 N2 A बाई एल। अब इसमें N1 is number of turns per unit length of solenoid S1, it will be N1 by L. N2 is the number of turns per unit length of solenoid S2, it is N2 by L. तो जब आप बेटा ये डालोगे तो यहाँ पर आप N1L डाल दोगे, तो यहाँ पर अब आपके पास सॉरी ये जब आपने N1 को लिखा N1L तो सॉरी ये आ जाएगा, ठीक है। तो आइदर अब इसमें डिफरेंस याद रखो कि whether you have to take total number of terms or you are taking number of turns per unit length। मैंने कैपिटल N1 की जगह N1L लिख दिया, कैपिटल N2 की जगह N2L लिख दिया, तो नेचुरली यहाँ ऊपर L स्क्वायर आ गया जिससे ये होगा। और अब L में सिर्फ क्या फ़र्क है राजे, याद जो रखना है कि अब उसमें आपके पास वही कॉइल है, उसी में से करंट पास हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है और उसी में इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो रही है। तो यहाँ पर दिस इज द डिफरेंस। सो दैट मीन्स कि यहाँ पर आपके पास बच्चे क्या है कि N1 N2 की जगह पर N स्क्वायर। सो दिस ऑल इज अबाउट म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। सो बेटा अब आपको पता लग गया how to derive the expression for self-inductance and how to derive the expression for mutual inductance. Now we want to derive mutual inductance of two concentric mutual inductance of two concentric circles of different radii. Concentric का मतलब with the same center. सो बेटा इट इज लाइक दिस कि ये आपके पास एक सर्कल है और यहाँ इसका सेंटर हो गया एंड इसका रेडियस जो है वो R1 है। ये आपके पास दूसरा सर्कल आ गया, दिस इज द सेकेंड सर्कल एंड दिस सर्कल इज ऑफ रेडियाई R2। तो जो सेंटर है दोनों का वो सेम है, यू कॉल इट एज C1 सर्कल एंड कॉल इट एज C2 सर्कल। अब आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया है, तो अब इसमें नेचुरली लेट अस से वी कंसिडर कि I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस, इसको कॉन्सेंट्रिक सर्कल कह लो या आप ऐसे कह लो टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स है। तो बेटे मतलब कॉइल ही है ना बनी हुई, तो जो एक कॉइल है अब उसको आपने बजाय के इस तरह लेने के आपने एक सर्कल ले लिया, ठीक हो गया ना, टर्म्स ऑफ सर्कुलर ऐसे हैं। तो अब बेटा जब इसमें से आई करंट आपने पास करवाया थ्रू दिस सर्कुलर कॉइल C2, तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड विल बी डेवलप। नाउ मैग्नेटिक फील्ड developed at center of C2। तो जो सर्कल के सेंटर में फील्ड डेवलप होगा B, तुम्हें याद होना चाहिए इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I अपॉन द रेडियस, और इसमें रेडियस क्या हो गया R2। याद करिए वॉइट-सावर्ट्स लॉ से आपने ऑलरेडी वैल्यूज ये कैलकुलेट की है कि सर्कुलर कॉइल में ये बनता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू
2 पाई आई बाय आर टू। यहाँ आपको लिखा मिल जाता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, तो वही बन गया ना ये, ठीक हो गया। अब जब ये फील्ड लाइंस हैं तो बेटा वो फील्ड लाइंस नेचुरली, अब आप इसमें देखिए तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, यूनिफॉर्म हो गई ना, क्योंकि R2 रेडियस लिया आपने, आई करंट लिया है, सो दैट मीन्स जो भी फील्ड डेवलप होगा इस रीजन में दैट विल बी द कांस्टेंट फील्ड। तो अब आपको क्या देखना है कि हाउ मच मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक्ड विद दिस, क्योंकि जो लाइंस ऑफ फोर्स है इसमें से निकल के ही आगे जा रही है ना। सो अब आप क्या देखोगे, मैग्नेटिक फ्लक्स linked with circular coil C1। क्या हुआ बच्चे, फील्ड डेवलप इनटू एरिया, क्योंकि दिस इज नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया, और एरिया इसका क्या बनना है, पाई r1 स्क्वायर। r1 इज रेडियस, तो इसका एरिया कितना हो गया, पाई r1 स्क्वायर। तो ये फाई किसके बराबर आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई बाय r2 इंटू पाई r1 स्क्वायर। अब इसमें ये पाई से पाई गया, ये 2 आ गया, तो आपके पास 5 बन गया म्यू नॉट अपॉन 2r2, म्यू नॉट ये बेटे 2r2 पाई r1 स्क्वायर इंटू आई। Now phi is m into I, so m into I is mu naught pi r1 square upon 2r2 into I, से I cancel हो गया। So that means mutual inductance between two concentric coils will be mu naught pi r1 square upon 2r2। Here what is this, r1 and r2 रेडियाई ऑफ द टू कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स, और म्यू नॉट की वैल्यू आप जानते हो 4 पाई इंटू 10⁻⁷। और जब भी आप म्यू नॉट ले रहे हो दैट मीन यू आर कंसिडरिंग दैट द मीडियम इज, जो इसके अंदर है वो क्या है, एयर है। सपोज देयर इज सम अदर मैग्नेटिक मटेरियल, देन म्यू नॉट के साथ क्या आ जाता है, म्यू आर। ये चीज़ हमेशा पल्ले बांध लो कि जब भी बेटा एयर आपने लेना है, एयर में आएगी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, दैट इज म्यू नॉट, ठीक है। और जब आप कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल ले रहे हो तो यहाँ भी म्यू नॉट है, उसके साथ क्या आ जाना है, म्यू आर। यहाँ भी का मतलब डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में म्यू आर आ जाएगा, न्यूमरेटर में है तो न्यूमरेटर में आ जाएगा। सो ये इस तरीके से यू कैन कैलकुलेट म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो बेटा now we have discussed in detail about self-inductance as well as mutual inductance. Now tomorrow we will discuss about AC generator. So please comment in comment box, like the video, share and subscribe. Thank you.